Welcome to Anecdote of the Jar by Wallace Stevens. In this discussion, we shall see science and knowledge dominate environment. कविता एनेक्डोट ऑफ द जार, जिसके कवि वॉलेस स्टीवंस हैं, में आपका स्वागत है। इस चर्चा में हम साइंस एंड नॉलेज डोमिनेट एनवायरनमेंट देखेंगे, अर्थात विज्ञान और ज्ञान ये पर्यावरण पर हावी होते हैं और मनुष्य कैसे इस चीज को साबित करता है, प्रमाणित करता है, वो हम इस चर्चा में देखेंगे। द जार फंडामेंटली ओवरपावर्स नेचर. It tames or domesticates its wilderness and jungle-like existence. We see that the jar fundamentally overpowers nature. We have seen a few videos before this video. We have seen a few videos on this topic, the anecdote of the jar, and everywhere we find one thing, that human being is overpowering nature, that we are trying to dominate over nature. हमने anecdote of the jar में कई वीडियोस देखे हैं इससे पहले, और उन वीडियोस में सब में हम इस चर्चा पर पहुंचे हैं, इस सहमति पर आए हैं कि ह्यूमन नेचर है, मनुष्य की प्रकृति ये है कि वो प्रकृति पर हावी होकर के जीता है, और ये हमारा मूल स्वभाव है। The jar fundamentally overpowers nature, and that is why the jar also overpowers nature, and for that reason the jar also is seen overpowering the nature, God made nature. इसीलिए जार या पात्र प्रकृति पर हावी होता हुआ दिखाई दिया है। It tames or domesticates its wilderness and jungle-like existence. It tames or domesticates its wilderness and jungle-like existence. Now, there is a jungle-like existence which surrounds the jar. In the poem, we find that the jar is kept at a place where the surrounding area is that of wilderness. पोएम में मूल कविता हमने जहां पढ़ी है, वहां हमने इस बात पर चर्चा की है। आप उस वीडियो को रेफर करें कि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, जहां पर हमने ये चर्चा की है कि जार जहां पर रखा है वहां पर विल्डरनेस है, उजाड़ बंजर बेतरतीब पड़ी हुई जमीन है। इट टेम्स और डोमेस्टिकेट्स इट्स विल्डरनेस, बट इन कोर्स ऑफ टाइम the jar tames and domesticates wilderness. The jar automatically finds the wilderness or jungle-like existence of the surroundings coming towards it. ये जो जंगली प्रकृति है, ये स्वतः ही जार की ओर अग्रसर हो जाती है। ये हमने कविता की मूल कविता में देखा है। This might reflect the way that human society literally dominates so much of its environment. Now, this reflects the way that human society dominates so much of its environment. Our environment is made up of nature. Our environment is full of those things which were made by God in their original form. But we find that our society changes this nature. प्रकृति को ईश्वर ने उसके मूल रूप में ही गढ़ा है, लेकिन मनुष्य अपनी प्रकृति से और अपने सामाजिक जीवन से, अपने सामाजिक जीवन शैली से हर चीज में परिवर्तन ला देता है। The dominion of the jar possibly symbolizes or indicates the way in which modern life throttles, suffocates and stifles the kind of loose creativity represented by nature. All natural growth is hampered by man. The dominion of the jar
possibly symbolizes or indicates the way in which modern life throttles. We see that the jar has been shown as living in a state, as existing in a state of dominion. हमने जार को देखा है कि वो वहां पर स्थित है अपने डोमिनियन या अपने डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर में. द डोमिनियन ऑफ द जार पॉसिबली सिंबलाइजेस. नाउ दिस डोमिनियन सिंबलाइजेस, ये जो जार का उन्नत अस्तित्व है, ये किस चीज का प्रतीक है? इंडिकेट्स द वे इन विच मॉडर्न लाइफ थ्रॉटल्स, सफोकेट्स एंड स्टिफल्स द काइंड ऑफ लूज क्रिएटिविटी रिप्रेजेंटेड बाय नेचर. नेचर हैज इट्स क्रिएटिविटी, but that creativity is throttled or suffocated or stifled by the nature of man or the habit of man to move towards the modern things. यहां पर जार के चारों तरफ जो प्रकृति है वो अपने स्वभाव को छोड़ करके जार के स्वभाव में समाहित होने के लक्षण दिखाती है और जार डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया है. यह डोमिनेंस ये प्रूव करता है कि मॉडर्न लाइफ हमारे क्रिएटिविटी को या नेचर की क्रिएटिविटी को, जो नैसर्गिक सहजता है या नैसर्गिक सृजनशीलता है, उसको थ्रॉटल करता है, सफोकेट करता है, स्टिफल कर देता है, उसको घोट के रख देता है. All natural growth is hampered by man, and that is why all natural growth is hampered by man. Man will not allow any natural thing to grow in its natural form. मनुष्य किसी भी प्राकृतिक चीज को उसकी सहज प्रकृति में आगे नहीं बढ़ने देगा. पेड़ पौधे होंगे तो उनको काट करके डिजाइन बना देगा. पशु पक्षी होंगे तो उन्हें मनुष्य की तरह हाथ पैर हिलाना, चलाना, बोलना, रेस्पॉन्सेस, रिफ्लेक्सेस वो सब सिखा देते हैं. तो हमने पशुओं को पशु की तरह से नहीं रहने दिया, वनस्पति को वनस्पति की तरह से नहीं रहने दिया. हर एक को हमने काट छांट के, तोड़ मरोड़ के सबके स्वभाव को, सबके स्वरूप को बदल करके रख दिया है. और इसीलिए मॉडर्न लाइफ स्टिफलिंग या थ्रॉटलिंग या सफोकेटिंग हो गई है. In either explanation, the logical human world stands up against the comparative freedom of nature. In either explanation, now we have seen many explanations throughout the many videos that we have discussed on the anecdote of the jar. The logical human world stands up against the comparative freedom of nature. One thing is the logical human world. हमारा मनुष्य का एक ब्रह्मांड है, मनुष्य की एक दुनिया है जहां हम लॉजिक पर चलते हैं, जहां हम तर्क पर चलते हैं या जहां हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मस्तिष्क पर चलते हैं. एंड द अदर थिंग इज द फ्रीडम ऑफ नेचर. प्रकृति का प्राकृतिक रूप, प्रकृति की प्राकृतिक स्वतंत्रता. और इन दोनों के बीच में एक ऑपोजिशन की सिचुएशन है. ऐसा एनेक्डोट ऑफ द जार के थ्रू वॉलेस स्टीवंस ने हमें बताया है. एंड एट द सेम टाइम द फैक्ट that the jar is empty might suggest that humanity's supposed orderly dominion over nature is hollow or a kind of illusion. Another interpretation is that the jar is empty. The emptiness may suggest that humanity's supposed orderly dominion over nature is hollow. That humanity's dominance over nature is a hollow concept. मनुष्य का ये सोचना कि मैं प्रकृति को जीत लूंगा या मैं प्रकृति पर हावी हो जाऊंगा या मैं प्रकृति को अपने इशारे पर नचा लूंगा, प्रकृति मेरे अनुसार चलेगी, मैं प्रकृति के अनुसार नहीं चलूंगा. This thought is hollow like the emptiness inside the jar. जिस तरह से जार के अंदर, पात्र के अंदर रिक्तता है, इसी तरह से हमारी सोच के अंदर भी रिक्तता है. यह हमारी खोखली सोच है.
कि हम प्रकृति को जीत सकते हैं या हम प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकते हैं या हम प्रकृति को अपने अनुसार जैसा चाहे वैसा परिवर्तित कर देंगे, ऐसा नहीं है। और अ काइंड ऑफ इल्यूजन, एंड दिस इज वेरी लाइकली टू बी मैन्स इल्यूजन। ये मनुष्य का भ्रम मात्र है कि वो प्रकृति को बदल सकता है। उसने चेष्टा की है, उसने बहुत प्रयास किए हैं कि वो प्रकृति को बदल ले, और किसी हद तक उसके प्रयास सफल भी हुए हैं। मैन हैज मेड अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ही हैज डन अ लॉट टू चेंज नेचर, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही हैज सक्सीडेड, नो डाउट। बट to think that he can absolutely or altogether change nature or overpower nature or overpower the environment is an illusion. तो मनुष्य का आंशिक सफलता के कारण ये भ्रम है कि मैं पूरी प्रकृति को बदल दूंगा, वो बिल्कुल नहीं बदल पाएगा, वो भ्रम में ही रह जाएगा। It is noteworthy that though humankind can discover, design and invent things and make its own objects, the poem suggests that nature is still the ultimate creator. It is noteworthy. यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य एक बात है। समीक्षा करते वक्त, व्याख्या करते समय हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, दो ह्यूमन काइंड कैन डिस्कवर, डिजाइन एंड इन्वेंट थिंग्स। Yes, we human beings can discover things, we can design things, we can invent things. Yes, we have the capability to create new things by our science, by our knowledge, by our efforts, by our skills. We can discover, design and invent things. ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे अंदर जो कौशल है उस, या हमारे अंदर जो ज्ञान है या युक्ति बुद्धि है, उससे हम चीजों का अन्वेषण कर सकते हैं, उनका स्वरूप बदल सकते हैं, हम नई चीजें पैदा कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नई चीजों का पता कर सकते हैं, लेकिन we and make its own objects and we can even make our own objects. और ये बिल्कुल सत्य है कि हम अपनी कुछ वस्तुएं या अपने कुछ तत्व भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। The poem suggests that nature is still the ultimate creator in spite of all this. The poem suggests that nature is the ultimate creator. Now, the poem is devoid of clarity, so there are many suppositions in the poem. कविता में क्योंकि स्पष्टता नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कयास बहुत लगाए गए हैं, इस पर गेसेस बहुत लगाए गए हैं। कई चीजों की व्याख्याएं हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पे अलग अलग तरह से की है। तो यहाँ पर यह भी व्याख्या हमारे सामने बहुत ज्यादा बार आती है। द पोएम सजेस्ट दैट द नेचर इज स्टिल द अल्टीमेट क्रिएटर, दैट द अल्टीमेट क्रिएटर इज नेचर इटसेल्फ। चाहे व्याख्याएं कितनी भी बदली हो, लेकिन यह सत्य कहीं नहीं बदला है कि नेचर अल्टीमेट क्रिएटर है। प्रकृति की सृजनशीलता को मनुष्य कभी भी चुनौती नहीं दे पाएगा, इसलिए प्रकृति अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, स्थायी है और अनबीटेबल है। इसको आप मात नहीं दे सकते हो, ऐसा इस कविता को बार बार पढ़ने के बाद प्रतीत होता है। We see that the jar remains bare or unadorned. It does not even fulfill its main purpose to contain things and is unsympathetic to bird or bush, both of which are evidence of nature's capacity for creation. We see that the jar remains bare or unadorned. Very, very important this point is that the jar is bare or unadorned. ये बहुत आवश्यक बिंदु है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि जार कितना भी उन्नत क्यों ना हो, किंग लाइक था, सबके बीच में अकेला खड़ा था, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, लेकिन उसी जार का ये सत्य भी तो था कि वो रिक्त था, उसके अंदर खालीपन था। वो जार बेर था, अनएडॉर्न्ड था, वो रिक्त भी था और उसके ऊपर कोई श्रृंगार नहीं था, वो किसी भी तरह से किसी तरह वो सज्जा उसके ऊपर नहीं थी, तो वो सुसज्जित भी नहीं था, वो रिक्त भी था। तो
तो ये उस जार के अस्तित्व को समझने के लिए हम बिंदु हमारे लिए बहुत आवश्यक है. इट डज नॉट इवन फुलफिल इट्स मेन पर्पस टू कंटेन थिंग्स, देन द जार डज नॉट फुलफिल द पर्पस ऑफ कंटेनिंग थिंग्स, because the jar has to contain, but the jar here which was before us did not contain anything. And many jars do not contain things. Many new things that science gives us, many new things that knowledge gives us, many new things that industrialization gives us, the modern life gives us, the modern society gives us, they do not solve our purpose. बहुत सी ऐसी नई चीजें हैं जो हमें ज्ञान, विज्ञान, आधुनिकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकता या उपभोक्तावाद सबने ला करके दिया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको की ना ये पूर्ति कर पाए, ना इनको ये बीट कर पाए. एंड इज अनसिंपैथेटिक टू बर्ड और बुश, and the jar is unsympathetic to bird or bush, and the jar is not sensitive or not friendly or not contributory to bird or bush, that is animal kingdom or vegetable kingdom. The jar does not contribute to any of these. और ये भी एक सत्य देखने को मिलता है कि जार का कोई योगदान नहीं है, न जीव जगत के लिए न वनस्पति जगत के लिए, both of which are evidence of nature's capacity for creation, and we find that nature's capacity for creation is shown by bird or vegetation. यदि पक्षी को देखें तो वह हमें क्रिएशन का प्रतीक लगता है, हम देख सकते हैं, इसमें कोई विवाद ही नहीं है. यदि वनस्पति को देखें तो वो क्रिएटिव है, उसमें सृजन होता रहता है, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई विरोध नहीं है. हम मानते हैं कि ऐसा ही वनस्पति के साथ होता है, ऐसा ही पशु पक्षी के साथ होता है. Humanity's inventions are useless without their creators. A jar is dominant, but it can't fill itself, whereas nature's bird and bush flourish all on their own. Humanity's inventions are useless without their creators. Whatever humanity can invent, but if the original creator is not attached to it, then nothing can be done or everything is useless. मनुष्य कितने भी चीजों का उत्पादन कर ले, लेकिन नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमें मिली हुई हैं, यदि उनका हमारे जीवन के साथ जुड़ाव नहीं है, समीकरण नहीं बिठाते हैं हम प्रकृति के साथ, तो हमारी बनाई हुई चीजें कोई काम नहीं आएंगी. यहां पर पात्र को ही देख लीजिए, जार को ही देख लीजिए. जार है लेकिन रिक्त है, उसके अंदर जो भी भरोगे वो आपको प्रकृति से मिलेगा. आप खाना भरोगे, यहां पर एग्जाम्पल भोजन का लिया गया है, तो वो भोजन कहां से आएगा? प्रकृति से ही तो आएगा. सब्जियां आएंगी, खाने का जो भी भोजन आएगा वो सब प्रकृति ही देगी हमें. तो अपने क्रिएटर से अलग होकर के आप मैनमेड चीजों को फुलफिल नहीं कर सकते हैं. A jar is dominant, but it can't fill itself, whereas nature's bird or bush flourish on their own. Now the jar cannot fill itself. Then the jar does not have the capability of filling itself. अंदर क्या वस्तु भरनी है वो एक बात हो गई. जार अपने आप से किसी चीज को भर ही नहीं सकता है. A living being or a natural being is required to fill something in it. इस प्रक्रिया को भी देखें हम कि पात्र के अंदर कुछ भरना है तो पात्र स्वतः अपने अंदर कुछ भर ही नहीं सकता है. कोई पशु, पक्षी या मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर कुछ भर दे. इसीलिए बर्ड और बुश ज्यादा डोमिनेंट हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूटरी हैं एज कंपेयर टू द जार. नेचर कैन ग्रो एंड सस्टेन इटसेल्फ, बट मैन मेड थिंग्स कैन नॉट. नाउ नेचर कैन ग्रो एंड सस्टेन इटसेल्फ. प्रकृति अपने आप पनप सकती है, अपने आप को कायम रख सकती है, लेकिन मैन मेड चीजें कायम नहीं रह सकती हैं अपने आप. उनको मेंटेनेंस चाहिए, उनको रख रखाव चाहिए. मशीन बनाई है तो जब तक मशीन की सर्विसिंग नहीं होगी वो मशीन कोई काम नहीं करती है. तो मैन मेड चीजें वो होती हैं जिनको मनुष्य अगर कंट्रोल करे, कंट्रीब्यूट करे तो वो निभती हैं, जबकि प्राकृतिक चीजें ऐसी हैं जो अपने आप ही निभ जाती हैं. This might reflect the way that modern life is. It is made of stiff rules and outlooks. Now this is what modern life is. यही है हमारा आधुनिक जीवन.
It is made of stiff rules and outlooks. We have made very stiff, very strict rules and outlooks which do not carry any meaning at all. हमने ऐसे ऐसे rules बना लिए हैं, ऐसे ऐसे विचार बना लिए हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है यदि प्रकृति नहीं है तो. Science and knowledge have raised our lives to a great extent. We are living in a better world. But we dominate environment in an unhealthy and unscientific way. Now science has given us knowledge. Science has raised our lives. But we are dominating the environment in an unhealthy and unscientific way. हालांकि विज्ञान ने हमें ज्ञान दिया है और हमारे जीवन में बहुत योगदान दिए हैं, फिर भी हम पर्यावरण के प्रति अस्वस्थ विचार, अवैज्ञानिक विचार, अस्वस्थ और अवैज्ञानिक शैली रखते हैं. और यही कारण है कि साइंस एंड नॉलेज हैव rather spoiled the environment. The use has not been done wisely. यही कारण है कि एनवायरनमेंट के प्रति साइंस और नॉलेज का सदुपयोग नहीं हुआ है और एनवायरनमेंट को जितना बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट नहीं मिला है. इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वी हैव कॉज्ड आवरसेल्व्स हार्म इन मेनी वेज. और डेवलपमेंट के नाम पर हमने अपने आप को बहुत बार क्षति पहुंचाई है. दिस प्रोग्रेस सिंबलाइज्ड बाय द जार इज इटसेल्फ हॉलो in that it robs life of the kind of genuine or God-gifted creativity and spontaneity seen in nature. In the name of development, we have caused ourselves harm in many ways. This progress, symbolized by the jar, is itself hollow. अब जार को ही देख लीजिए, उसकी प्रोग्रेस किंगली, it is standing in a kingly manner, but it is hollow. यहाँ जार को ही देख लीजिए कि राजसी ठाट बाट लिए हुए खड़ा है, ऐसा लग रहा है उसको देख करके, लेकिन अंदर से हॉलो है. एंड दैट इट रॉब्स लाइफ ऑफ द काइंड ऑफ जेन्युइन और गॉड गिफ्टेड क्रिएटिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी सीन इन नेचर. एंड व्हाट गॉड हैज गिवन टू अस थ्रू नेचर, द क्रिएटिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी, और ईश्वर प्रदत्त सृजनशीलता, ईश्वर प्रदत्त सहजता, ये सारी चीजें हम लोगों को से छीन ली गई है बाय द मॉडर्न लाइफ, बाय द न्यूनेस दैट वी आर रनिंग आफ्टर. ये जो नएपन की तरफ हम भाग रहे हैं, आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, इसने हमें ईश्वर प्रदत्त कई अच्छी चीजों से वंचित कर दिया है. Our knowledge and scientific progress have desensitized us towards the environment and all the gifts bestowed on us by Almighty God. Our knowledge and scientific progress have desensitized us towards the environment. And this is what we see, that the knowledge and scientific progress have actually bereft us of our sensation. Knowledge और scientific progress ने हमारे अंदर की संवेदनशीलता को समाप्त कर दिया है. हम असंवेदनशील हो गए हैं, डिसेंसिटाइज हो गए हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. किसके प्रति असंवेदनशील हो गए हैं? पर्यावरण के प्रति. एंड ऑल द गिफ्ट्स बेस्टोड ऑन अस बाय ऑलमाइटी गॉड, एंड वी हैव बिकम डिसेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स ऑल दोज गुड थिंग्स, ऑल दोज माइटी थिंग्स दैट द ऑलमाइटी हैज बेस्टोड ऑन अस. All those very, very, very wonderful, miraculous things that Almighty God has bestowed on us, we have actually become insensitive to them. वो बहुत सारे उपहार जो ईश्वर ने हमें दे दिए हैं, हम उन उपहारों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं और हमें उन सब का पता ही नहीं चलता है. ये हवा, ये वायु, ये बादल, ये चिड़ियों का चहचहाना, ये इतनी सारी मुफ्त की चीजें जो ऑलमाइटी गॉड ने हमें दी हैं, हम इन सब के प्रति संवेदनशील नहीं हैं और हमें पता ही नहीं है कि प्रकृति के माध्यम से भगवान ने हमें कितना सारा दे दिया है. ये थीम यहाँ पर हमें बताती है कि हमें जार से ये भी समझना चाहिए कि इसने वो सारी चीजों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो ईश्वर ने हमारे ऊपर न्योछावर कर दी है. What God has gifted to us free of cost
and forgotten and not asked for anything in return. We have forgotten those things, we have neglected those things, and the jar should draw our attention towards this after reading as a scholar. After reading anecdote of the jar, we should pay our attention towards this fact. इस कविता को पढ़ने के बाद हमारा ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिए. थैंक यू. धन्यवाद.